So today is 12. Zero 01 to 022, and now we are going to do some more corollaries of this Archimedean property. So corollary: if y is greater than 0, then there exists ny in n such that ny minus 1 is less than equal to y is less than ny. क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम कोई रियल नंबर y ले रहे हैं ग्रेटर देन 0, तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा जिसको हम ny से डिनोट कर रहे हैं। ny इसलिए क्योंकि y पे डिपेंड करेगा, और वो नेचुरल नंबर कुछ इस तरह से होगा कि ny माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन ny। मतलब ये जो नेचुरल नंबर ny है वो और उसके पहले जो नेचुरल नंबर आ रहा है उसके बीच में y लाई करेगा। ठीक है, सो हमको इसको प्रूफ करना है। सो लेट अस सी द प्रूफ। सर y रियल नंबर है ना? y is a real number. So if y is greater than 0, so let me write it like this. Okay, y is a real number. Y belongs to R greater than 0. So y is a real number greater than 0. Then there exists a natural number such that y will be in between ny minus 1 and ny. So how will we prove it? Consider a set EY. सेट का नाम हमने EY दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि ये सेट y पे डिपेंड करेगा। This is the set of those natural numbers which are greater than y. और ये सेट नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि सारे नेचुरल नंबर y से छोटे नहीं हो सकते। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के प्रूफ में हम लोग ने देखा, we have seen in the proof of Archimedean property that the set of natural number is unbounded. So सारे नेचुरल नंबर इस y से छोटे नहीं हो सकते, तो कुछ नेचुरल नंबर तो y से बड़े होंगे। तो हमने उन नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट किया जो y से बड़े हैं। This set is non-empty, and also this set is a subset of the set of natural number, because those n in n will satisfy this property. So it is a subset of natural number. Now, I hope you know the well-ordering property of the set of natural number. If you don't know, let me state it, recall that. What is well-ordering property of natural number? Of natural number. पता है किसी को? Do you know what is well-ordering property of natural number? नहीं? Suppose every non-empty subset of n has least element. Yes. So suppose S is a subset of n and S is non-empty, then S has least element. Do you know what is least element? Least element is actually the greatest lower bound that belongs to that set. यानी ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है जो इस सेट के अंदर होगा, यानी सेट का एक ऐसा एलिमेंट जो सारे एलिमेंट से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द लीस्ट एलिमेंट। सो इस वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी से, बाय द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ
by well ordering property of n, there exists a least element m in EY. ठीक है, एक लीस्ट एलिमेंट होगा m EY के अंदर। इसका मतलब ये हो गया, सो m minus 1 does not belongs to this set EY, क्योंकि अगर m minus 1 भी इसके अंदर होता तो वही लिस्ट होता, लिस्ट माने सबसे छोटा। So m minus 1 does not belongs to this set. Do you agree? Yes, sir. It simply means that m minus 1 is less than y, less than or equal to y. क्या ये कह सकते हैं? अगर m minus Yes, 1, sir. if m minus 1 is greater than y, then it must be in this set, and because it is not in this set, so it should be less than equal to y. Is it okay? But y is always less than m. So you can say that, so take ny to be m, then ny minus 1 is less than y is less than ny, and this proves the result, proved. समझ में आ रहा है? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now there are two theorems, density theorems, rational density theorem and irrational density theorem. So let us prove it. Theorem. If xy belongs to R with x less than y, then there exists a rational number R in Q such that x is less than R and R is less than Y. So it means in between x and y, there is a rational number. This is called rational density theorem. This is called rational density theorem. Rational density theorem means हर दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, हर दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर होगा। दैट इज द रैशनल डेंसिटी थ्योरम। लेट अस प्रूव इट। अच्छा, चलिए हम लोग इसको प्रूव करने के लिए पहले मान लेते हैं, सपोज x इज ग्रेटर देन 0। मान लीजिए कि x 0 से बड़ा है। नाउ x y से तो छोटा है, सो y माइनस एक्स क्या होगा, वो भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, सो 1 over y minus x is actually a real number. By Archimedean property, AP हम लोग लिख रहे हैं Archimedean property के लिए। By Archimedean property, there exists n in n such that 1 over y minus x
will be less than n. Am I correct at this point? हमको पता है किसी भी रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर होगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ny minus nx is greater than 1. So you may say that ny is greater than 1 plus nx. एग्री कर रहे हो? नाउ अब इस nx को देखते हैं. नाउ nx is where? nx एक रियल नंबर है. इसका मतलब ये हो गया जो अभी हम लोग ने प्रूफ किया, देयर एग्जिस्ट ए m in n such that ये जो रियल नंबर है वो दो इंटीजर्स के बीच में होगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में होगा. अभी हम लोग ने प्रूफ किया ना, एनी रियल नंबर इज इन बिटवीन टू इंटीजर्स. देखिए अभी हम लोग ने प्रूफ किया ऊपर वाले रिजल्ट में कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, देन दैट रियल नंबर विल बी इन बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स, इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो एक नेचुरल नंबर m मिला जिसके बीच में ये आ जाएगा. एग्री कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो अब देखिए nx का क्या होगा. nx जो है वो m से छोटा है और m जो है वो nx plus 1 से छोटा है. और nx plus 1 जो है वो ny से छोटा है. इसका मतलब क्या हो गया? इसको ऐसे लिख सकते हैं बीच के टर्म में अगर हम कुछ मिस कर दें, nx लेस देन m इज लेस देन ny. और अब हम पूरे में n से डिवाइड कर दें, सो x लेस देन m by n इज लेस देन y. So clearly m by n is a rational number in between x and y, and that is what we want to prove. So this is the proof of rational density theorem. In between any two real numbers you have a rational number. अब x और y रैशनल हो चाहे नहीं हो, बट उनके बीच में एक रैशनल नंबर होगा. ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, उनके बीच में एक रैशनल नंबर होगा. नाउ on the same way you can show that in between any two real number there will be an irrational number in between them. So I am writing it as a corollary, बट आप इसको रैशनल इरेशनल डेंसिटी थ्योरम भी बोल सकते हैं. ठीक है, if xy belongs to R with x less than y, then there exists an irrational number R such that x R y. So corollary इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले की मदद से, ऊपर जो थ्योरम हमने किया उसकी मदद से बहुत आसानी से आ जाता है. आपको पता है √2 एक इरेशनल नंबर होता है, और रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर मिलेगा. ठीक है, तो इस फैक्ट का अगर हम यूज करें, नाउ x √2 and y √2 belongs to R such that x √2 is less than y √2. By rational density theorem
by above theorem, there exists S in Q, Q means rational number exist कर रहा है, such that x under root 2 S y under root 2. This implies x S upon under root 2 is y. And now you can see this is an irrational number. This is an irrational number. And that is what we want to prove, that in between any two real numbers, you have an irrational number in between them. ठीक है, इनके बीच में एक irrational number होगा. So that is called irrational density theorem. Okay, so one thing, note that I have taken here x to be greater than 0 and prove everything. So I am leaving it as exercise for you to show the same thing for x less than 0. Okay, for x less than 0. Is there any problem till now? अभी तक जितना Sir. किया, हाँ बोलो. बोले क्या there are infinitely irrational number between two real numbers? Yes. Yes, sir. Why is it happening? See, I have taken one x and one y, and I get one rational number here. So now in Yes. between these two, you will again get a rational number. In between these two, you will get again a rational number. Yes, sir. So in between any two real number, you will have several rational numbers and irrational numbers. Okay, or you may say that there are infinitely many rationals or irrational numbers in between any two real numbers. Okay, now let us define monotone sequence. What is monotone sequence? If xn is a sequence of real numbers, if xn is a sequence of real numbers, then we say, number one, xn is increasing. We say xn is increasing if x1, x2, x3 and so on. This is the situation. Means the terms are, means xn is always less than equal to xn plus 1 for all n. And on the same way, this sequence xn is decreasing if x1 greater than equal to x2, greater than equal to x3, greater than equal to xn is greater than equal to xn plus 1. Okay, so there is increasing sequence, decreasing sequence. We say
xn is monotone if it is either increasing or decreasing. Agree or not? Yes, sir. This is what Yes, we- sir. For example, if you take a sequence 1, 2, 3, 4, it is increasing or decreasing? Increasing. If you take a sequence A, Increasing. A square, A cube, A4 and so on, is it increasing or decreasing? Increasing. It depends. If A is greater than 1, then it is increasing. Depends on interval. And if A is less than 1, the same sequence is decreasing. Yes, sir. And so on. You know several examples of it. I'm not going into the detail of it. So this is called monotone sequence. Now, there is a theorem called monotone convergence theorem. I hope you have learned it. Monotone theorem. If, point number 1, if xn is increasing sequence and bounded above, bounded above means it has an upper bound. किसका अपर बाउंड है? सीक्वेंस के एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसका अपर बाउंड है. इफ द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस हैज एन अपर बाउंड, then xn converges to its least upper bound or supremum. This is one result. And on the same way, if xn is decreasing sequence and bounded below mean it has a lower bound, then xn converges to its greatest lower bound. Summarizing these two in one sentence, if you summarize these two things in one sentence, अगर दोनों चीज को मिला के हम एक साथ लिखें तो हम कहेंगे bounded monotone sequence is convergent. यही है आपका मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम. यानी मोनोटोन सीक्वेंस अगर बाउंडेड होगा तो वो कन्वर्ज करेगा. बाउंडेड का मतलब दोनों हो गया, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो. तो कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगा. ठीक है, इसका प्रूफ हम छोड़ दे रहे हैं, इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं. यू कैन सी द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम फ्रॉम द बुक ऑफ आर.जी. बर्टल. प्रूफ इज नॉट वेरी हार्ड. जस्ट लीस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी यूज की गई है या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी यूज की गई है कि लीस्ट अपर बाउंड को थोड़ा सा अगर हम कम करेंगे तो सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट उसमें आ जाएंगे. इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं. सो आई एम लिविंग इट फॉर यू टू वेरीफाई मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और चीज डिफाइन करते हैं. नो प्रॉब्लम सो फार. अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको? नो सर. ठीक. यस सर.
डिफाइन कर रहे हैं सब सीक्वेंस। अच्छा, सब सीक्वेंस के पहले एक चीज और डिफाइन कर देते हैं, इसका नाम है पीक टर्म। पीक टर्म, व्हाट इज पीक टर्म of a sequence peak term of a sequence? We say that mth term of a sequence xn is a peak term if xm is greater than equal to xn for all n greater than equal to n। क्या मतलब हो गया इसका? mth टर्म को हम पीक टर्म तब बोलेंगे जब xm के बाद के सारे टर्म xm से छोटे होंगे या बराबर होंगे। समझ में आ रही है ये बात? mth टर्म को पीक टर्म कब बोलेंगे? जब mth टर्म के यानी xm के बाद के सारे टर्म xm से छोटे होंगे या बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये सीक्वेंस लिया 1/n का, तो क्या बनेगा सीक्वेंस 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। यही सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में 1 क्या पीक टर्म है? यस सर। Yes, क्या sir. 1/2 पीक टर्म है? Yes, sir. हर टर्म पीक टर्म होगा सर। इसका हर टर्म पीक टर्म बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक्चुअली में मोनोटोनिक, ये एक्चुअल में डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना? तो बाद वाले जो टर्म क्या है, पहले वाले टर्म से छोटे हैं। अच्छा, अगर इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे रिमूव करके हम 2 लिख देते या 3 लिख देते, तो अब इसका पीक टर्म कौन सा होता? 3 हो जाएगा। 1 पीक टर्म होता? नहीं होता। 1/2 is also not peak term. 3 is a peak term. यस सर। 1/4 is a peak term or not? नो सर। नो सर, Yes, अगला sir. टर्म नहीं पता है। नहीं। Oh, other terms are like this: 1/5, 1/6, and so on. Yes, sir. Peak है sir. Then sir 1/4 peak term. 1/4 is peak term, 1/5 is peak term, 1/6 is peak term. So the simple observation is that in increasing sequence, all terms are peak term. Sir, decreasing होगा ना? सर डिक्रीजिंग होगा ना? Oh yes, बोथ yes. के लिए होगा। In decreasing, yes. इंक्रीजिंग में नहीं होता है सर ना? Decreasing. यस। And in increasing, what will happen? So no one is peak term. नहीं होगा कोई। Sequence, no term is peak term. Is peak term. So you understand the definition of peak term. Okay. चलिए एक और चीज डिफाइन कर लेते हैं, सब सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं। Subsequence. What is subsequence? Let xn be a sequence of real number. So let me write it like this. So it means xn is a sequence of real number. Okay. Now
let n1, n2, nk, and so on be strictly increasing sequence of natural numbers. ठीक है, तो एक नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस लिया हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो जो हमारे गिवन सीक्वेंस के टर्म आ रहे हैं उन्हीं को हम बोलेंगे सब सीक्वेंस. देन द सीक्वेंस x and k, कहने का मतलब xn1, xn2, xn3 and so on. This sequence, then the sequence this is called subsequence of xn. Is this definition is clear? Yes, sir. Okay, so suppose you have a sequence x1, x2, x3, x4, x5, s6, x7, x8, x9, and I pick some of the terms from this sequence in strictly increasing order. Means I take it one term x1, then I take this term, this is x4, then I take this term s6, and then I take x9, and so on. So this sequence is called subsequence. This is subsequence. Okay, so I choose first term, fourth term, sixth term, ninth terms, and so on. In some way, I choose some another terms and make a sequence. Then this sequence is called subsequence. Okay? सर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए ही होगा बस सब सीक्वेंस. हाँ, जैसे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है और अगर हम 4 को 2 बार ले लें तो कोई फायदा नहीं होगा ना उससे. इसी टर्म में से कुछ टर्म को चूज करना है. जैसे 1 लिया हमने, उससे बड़ा 4, फिर 6 लिया, फिर 9 लिया. लेकिन अगर हम 2 बार 4 लिख दें यहाँ पे और x4 लिख दें तो कोई मतलब नहीं है उसका. इसी सीक्वेंस में से कुछ टर्म को हमको सिलेक्ट करना है, इसलिए नेचुरल नंबर का जो सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों आपस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं. हो सकता है x1 की वैल्यू भी 1 आ रही हो और x4 की वैल्यू भी सम 1 आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक टर्म ले लिया तो उसके बाद वाला टर्म ही लेंगे, उसके आगे वाला टर्म, उसके बाद कोई नंबर होगा. समझ में आ रहा है? यस सर. सर हाँ सर इसमें अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो वो भी उसका भी सब सीक्वेंस लिख सकते हैं ना. हाँ, सब सीक्वेंस का मतलब उसमें से कुछ टर्म को ऑर्डर. अच्छा ठीक है. उसकी वैल्यू कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है हमको. जैसे हमने एक सीक्वेंस लिया 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन. इसमें से कुछ टर्म को छांट लेना ही सब सीक्वेंस है. 1 ये ले लिया मान लीजिए, फिर हमने 1/4 भी ले लिया, लेकिन 1/3 2 बार नहीं लेंगे, इन थर्ड टर्म 2 बार नहीं लिखेंगे ना, बस यही है. सो एनीवे यू चूज एनी सीक्वेंस which consists of sum of the terms of the above sequence, then that is a subsequence. जो given sequence है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होना चाहिए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. कोई भी सीक्वेंस हो उसके कुछ टर्म्स को आप ले लीजिए तो आपको जो सर तो इसमें 1/3 के बाद अगर हम 1/2 लिखें फिर 1/4 लिखें तो वो सब सीक्वेंस होगा? नहीं होगा, क्रम वही रहेगा. जैसे इसका पहला टर्म आया, इसका तीसरा टर्म आया, तो इसके बाद इसका दूसरा टर्म नहीं आएगा. क्रम यही रहेगा. हाँ, यही क्रम यही रहेगा. इसी क्रम में लेना है, बढ़ते क्रम में. इसीलिए यहाँ पे जब हमने डिफिनीशन दी तो यहाँ पे देखिए n1 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन nk किया, यानी टर्म जब आगे दूसरा लेंगे तो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं टर्म x nk.
सर ठीक है। यस, सर सब सीक्वेंस हमेशा यूनिक होगा? नहीं, बहुत तरीके से ले सकते हैं सब सीक्वेंस। इनफाइनाइटली मैनी? यस, इनफाइनाइटली। ओके सर, थैंक यू। चलिए, अब हम लोग आते हैं एक रिजल्ट पे जिसको बोलते हैं मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम। सर एक मिनट सर। यस, सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस व्हाट इज? 1 second. Yes, what is the question? Repeat again. सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस। Complementary pair of subsequence. This I don't know. So if you know, please define it. Then we can think over it. तो अगर आप जान रहे हैं तो उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे उसको क्या चीज है और उसका क्या यूज है। ठीक है अतुल? नहीं सर नहीं पता इसीलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, तो फिर हम देख के बताएंगे आपको। ठीक, ओके सर। ठीक है, मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम पे आते हैं। इफ xn is a sequence of real number, then there is a subsequence of x that is monotone. क्या मतलब हुआ? हर सीक्वेंस का एक मोनोटोन सब सीक्वेंस होगा। ठीक है, इस थ्योरम का कंक्लूजन क्या है? फॉर ईच सीक्वेंस देयर इज ए मोनोटोन सब सीक्वेंस। हर सीक्वेंस के लिए एक मोनोटोन सब सीक्वेंस मिलेगा। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। Just concentrate on the peak terms of the sequence. So I can divide the thing into two cases where the sequence has infinitely many peak terms and where the sequence has finitely many peak terms or has no peak term. So let us assume again, suppose xn is contained in R. So what does it mean? xn is a sequence in R. हमने मान लिया. So I will divide the problem into several cases, two cases. Case 1, xn has infinitely many peak terms. So I think there are only two cases possible. There are infinitely many peak terms or there are finitely many peak terms or no peak terms. Is it clear? या तो peak term होगा Yes, या sir. तो infinitely many होगा या तो finite होगा peak term. यस सर। तो हमने सपोज करो infinitely many peak terms उसके अंदर हैं। तो जब infinitely many peak terms हैं तो चलिए उनको नाम दे देते हैं कुछ peak terms को। Let xm1, xm2, xm3 and dash where m1, m2, m3 is in increasing order, यानी x m1th टर्म जो है वो पीक टर्म है, तो उसका टर्म क्या बन गया? xm1, उसके बाद फिर xm2 पढ़ा, फिर xm3 पढ़ा और इस तरह से ये पीक टर्म मिल गए। Let this be all peak terms.
ऑफ xn। तो बढ़ते क्रम में हमने सारे पीक टर्म को रख दिया। अब बताइए x m1 इज ए पीक टर्म, तो वो अपने बाद वाले टर्म से बड़ा होगा कि छोटा होगा? x m1 बड़ा होगा ना? बड़ा होगा, Yes, sir. बड़ा होगा। So it is greater than xm2 and xm2 will be greater than xm3 and so on. डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा सर। And there are infinitely many such peak terms. So what is this? This is a decreasing sequence. Decreasing sequence. और you may say it is a decreasing subsequence of xn, क्योंकि xn के एलिमेंट से ये आया है। तो अगर infinitely many peak terms है तो क्या मिल गया? एक सब सीक्वेंस मिल गया, that is monotone. Why is it monotone? Because it is a decreasing. Now case 2. xn has finitely many peak terms. ठीक है, xn के क्या है? फाइनाइटली मेनी पीक टर्म्स हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं पीक टर्म्स इसके, सपोज यहां पे हम ये चीज भी ले सकते हैं, हैज नो पीक टर्म। यानी पीक टर्म्स का संख्या 0 हो, तब भी जैसे हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वही कंस्ट्रक्शन काम करेगा। ठीक है ना? फाइनाइटली मेनी का मतलब 0 भी इंक्लूडेड है इसमें, हैज 0 पीक टर्म्स। तो मान लीजिए कि x m1, x m2, x mr फाइनाइटली मेनी थे, तो उनका कुछ फाइनाइट संख्या होगा। दिस बी ऑल द पीक टर्म्स, all the peak terms such that वो भी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, m1, m2 एंड mr। ये सारे पीक टर्म हमने लिख लिए क्योंकि फाइनाइटली में नहीं थे। नाउ अब इस टर्म के बाद अगर हम देखेंगे तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो पीक टर्म नहीं होगा। Now n1 is equal to, इस टर्म के बाद कौन आएगा? mr plus 1। Now n1 is equal to this, then x n1 is not a peak term, क्योंकि जितने पीक टर्म थे सब लिख लिया हमने, because all the peak terms are written above, so the next term will not be peak term. Do you agree on at this point or not? Yes, sir. यस सर। तो अगर ये पीक टर्म नहीं है तो इससे बड़ा कोई टर्म होगा? यस सर। Let n2 greater than n1 such that x n2 is also greater than x n1। होगा ऐसा? Since x n2 is not a peak term, this is not a peak term, so there exists n3 greater than n2 such that x n2 will be greater than x n3 will be greater than x n2। And we can go on doing this process. Why? क्योंकि आगे कोई पीक टर्म है नहीं, तो एक बड़ा टर्म जरूर मिलेगा। So we can go on doing this process. So x n1 इससे बड़ा कौन? x n2, then x n3 and so on is a increasing
sequence, or you may say subsequence. Is it okay? सर ये Yes, sir. एक्स एन आई जो सब सीक्वेंस बनेगा वो हो जाएगा ना इंक्रीजिंग सीक्वेंस? हाँ, एक्स एन आई जो ये बना, ये सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। तो ये जो सब सीक्वेंस है एक्सएन का सब सीक्वेंस है, तो दोनों ही केसेस में एक्सएन का सब सीक्वेंस मिला। इन बोथ द केसेस वी गेट ए सब सीक्वेंस ऑफ एक्सएन विच इज मोनोटोन। तो अगर कोई पीक टर्म नहीं है तब भी यही काम करेंगे, पहले ही टर्म से स्टार्ट कर दीजिए, पहला टर्म लिया, उसके बाद कोई उससे बड़ा टर्म मिलेगा, फिर आगे बढ़े, फिर उससे बड़ा कोई टर्म मिलेगा एंड सो ऑन। और अगर पीक टर्म था तो जहां तक पीक टर्म थे वहां तक चले गए, वी स्टॉप एट ए पीक टर्म एंड देन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म। ठीक ना? तो इस तरह से चलने पर हमको what we will get is that we will have a monotone subsequence of a sequence. So monotone subsequence theorem, what is this theorem? Given any sequence you have a monotone subsequence. ठीक है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम शॉर्ट में अगर लिखें, if I write the statement of the theorem in short, then monotone convergence theorem is every sequence of real number, every sequence of real number has a monotone subsequence. ठीक है, हर सीक्वेंस जो रियल नंबर का होता है उसका एक मोनोटोन सब सीक्वेंस होता है। सो लेट अस स्टॉप इट। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस डिफाइन कर दिया जाए तो वो तो मोनोटोन है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस तो अपने आप में मोनोटोन है। और सर उसका पीक टर्म डिफाइंड होगा, जैसे सर एक्शन का रेंज सेट 1 ले लेते हैं, हाँ एक्शन का रेंज सेट 1 ले लिए तो सर उसका पीक टर्म डिफाइंड होगा? हाँ होगा, हर टर्म पिक सर टर्म है। देखिए पिक टर्म की डेफिनेशन में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लिया गया है। यस देखिए ओके सर। देखिए यहाँ पे क्या लिया गया, पिक टर्म की डेफिनेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू लिया गया है। तो हर Yes, टर्म sir. बाद वाले टर्म से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, ओके सर। तो एवरी टर्म इज अ पिक टर्म। Is it okay? Any problem at any point? नो सर। No, sir. Yes.